प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ध्यान से देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक का। और जितनी बातें हमने करी हैं वो सारी रिपीट होंगी, जितनी बातें हमने करी हैं सारी रिपीट होंगी। तो लास्ट चांस है, कोई अगर डाउट रह गया हो तो उसको क्लियर करने का, लास्ट चांस। प्रॉपर्टीज 6 मार्क में भी क्वेश्चन आ सकता है, 4 मार्क में भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने को भी आ सकती है। एक एक प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। नंबर 1, इंडिफरेंस कर्व्स आर ऑलवेज convex to the origin. Why? Because it is assumed that MRS is diminishing, because of diminishing MRS. An indifference curve is convex to the origin because of diminishing MRS. MRS declines continuously because of, दो अलग क्वेश्चन है। Why is indifference curve convex to the origin? It is because of diminishing MRS, diminishing marginal rate of substitution। 1 मार्कर के लिए इतना ही होता है। 3 मार्कर तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि why is MRS diminishing, why is MRS diminishing, और अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है why is MRS diminishing। MRS declines continuously because of law of DMU. When consumer consumes more and more of apples, the marginal utility, the additional satisfaction from apples keep on diminishing or declining, and he is willing to give up less and less of bananas for each apple. समझ आई बात? Therefore, indifference curves are convex to the origin. It must be noted that MRS indicates the slope of indifference curve. तो 3 क्वेश्चन बन गए यहाँ पे। What is the slope of indifference curve? MRS. Why is indifference curve convex to the origin? Because of diminishing MRS. Why is MRS diminishing? फिर because of law of DMU. You can't stop there. You have to explain further. Clear है? कोई doubt? First property, indifference curves are convex to the origin. Second property, तो दो अलग properties हैं कि convex और downward sloping। ध्यान रखना, इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड कोई स्लोपिंग है कर्व, तो मतलब एक बढ़ रहा है, एक की कंजम्पशन बढ़ रही है, दूसरे की कम हो रही है, तभी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। सर ऐसा क्यों? अगर आप एक सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मेंटेन करना चाहते हैं, तो अगर एक की कंजम्पशन बढ़ रही है तो दूसरे की कम करनी पड़ेगी। अदरवाइज आप एक की बढ़ा रहे हैं और दूसरे की कम नहीं कर रहे, तो आप हायर इंडिफरेंस कर्व पे आ जाएंगे ना, तो आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम थोड़ी ना रहा। Indifference curve slope downwards. It implies that a consumer consumes as a consumer consumes more of one good, he must consume less of the other good. It happens because if the consumer decides to have more of one good, more units of one good, he will have to reduce the number of units of the other good so that total satisfaction remains the same. So why is the indifference curve downward sloping? Because to increase the consumption of one good, the consumer has to reduce the consumption of the other good to maintain the same level of satisfaction. अगर आप एक की कंजम्पशन बढ़ाएंगे और दूसरे की कम नहीं करेंगे, then you would not be on the same indifference curve, you would be on the higher indifference curve. तो सर उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत कोई नहीं है। इंडिफरेंस कर्व क्या कहता है? that all the points on the curve should give same level of satisfaction. तो अगर आप उसके ऊपर लाई करना चाहते हैं, अगर सेम इंडिफरेंस कर्व पे लाई करना चाहते हैं, तो if you are increasing consumption of one good, you have to reduce, you must reduce the consumption of the other good. कोई डाउट? इंपॉर्टेंट है, सारे ही इंपॉर्टेंट है। Higher the indifference curve, higher the level of satisfaction because of monotonic preferences. Because of monotonic preferences. Higher indifference curve represent large bundle of goods, which means more utility because of monotonic preferences. Do I need to explain this? Higher indifference curve हो चुका है हमारा already.
Now this is interesting. Indifference curves never intersect each other. ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखना. फोर्थ प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रहे हैं. क्या है फोर्थ प्रॉपर्टी? Indifference curves, two indifference curves never intersect each other. ऐसा क्यों? अभी दिख जाएगा, ध्यान से देख. Y axis, X axis, apples, bananas, color changes to blue. ध्यान से देख. ये एक इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है. IC1, चल. ऐसे कर लेता हूँ. पॉइंट तो इसी में प्रूव हो जाएगा, ठीक है. ध्यान से देखेंगे, ये IC1 है, ये IC2 है. अब ध्यान से देखना बेटा, मजेदार पॉइंट है. कह रहे हैं टू इंडिफरेंस कर्व्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. टू इंडिफरेंस कर्व्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. तो चलो थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बना. ये IC1 है, एक सेकंड. तो वो ऊपर दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ से ले लेता हूँ. शांति, ठीक है. ये IC2 है, ये IC1 है. अब ध्यान से देखना, क्वेश्चंस पूछूंगा आपसे. ये पॉइंट A है. A ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है या B? सेम. आर यू श्योर? A ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं या B? नॉट श्योर. क्या नहीं दे रहा हूं? A ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं या B? दो अलग आंसर है. नॉट श्योर या सेम है? IC2 तो है ही नहीं अभी. A और B तो ब्लू लाइन पे है. A ब्लू लाइन पे है कि नहीं है? B ब्लू लाइन पे है कि नहीं है? IC2 तो भूल ही जाओ. दोनों IC1 पे हैं कि नहीं है? तो A ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है या B? सेम. A इज इक्वल टू B. यस और नो? ठीक है जी. अब ब्लू को भूल जाओ. A ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है या C? सेम.
yes or no? If A is equal to B and A is equal to C, then B should be equal to C. B ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं या C? सेम सेम हो सकता है, C C या सेम? सर मेरा मन तो सी बोलने का, लेकिन देवांश ने सेम बोल दिया, तो मैं बस यही पूछ रही थी सेम कैसे होगा, सेम कैसे बोलूं, सी या सेम? आर यू श्योर? 100% श्योर? आपने पहले बोला था सी, फिर आपको पता चला कि देवांश ने बोला सेम, तो आपका फाइनल आंसर क्या है? सेम। Whenever in doubt, go with, ये क्या स्ट्रैटेजी? सी। आपने क्या बोला? सेम सेम। अब आप शांत रहे। सी बोल चुकी हूँ। C is on a higher indifference curve. C is on a higher, देख आपने आंखों के सामने देखो, B में क्या ऑप्शन है? इतनी यूनिट्स X की, इतनी यूनिट्स Y की। C में क्या ऑप्शन है? मोर ऑफ बनानास एंड नो लेस ऑफ एप्पल्स। तो C ज्यादा सेटिस्फैक्शन देगा या B? दिख रहा है C should give more satisfaction, but contradicting results. If C should give more satisfaction than B, then C cannot be equal to A, because A and B are giving same satisfaction. जितनी satisfaction B पे है उतनी A पे है, जितनी A पे है उतनी C पे है, तो C then B should be equal to C, but it is not the case. Therefore two indifference curves can never intersect each other. If they intersect each other, they will give contradicting results. They will give contradicting results. क्यों नहीं है? कहां से नीचे? लेफ्ट साइड। बी और सी को कंपेयर कर रहे हैं, मैं तो पॉइंट को कर रहा हूं ना। तो ये हाई है कि नहीं है? एक सेकेंड क्वेश्चन आया कि सर ये तो लो है। एक मिनट ध्यान से देखेंगे, इस पॉइंट से पहले वो लो था। इस सिचुएशन में, मैं तो यहां बात कर रहा हूं ना अभी, इस सिचुएशन में IC2 हायर कब है या लोअर है या सेम है? हायर है, बिल्कुल है। उस सिनेरियो की बात हो रही है ना। हायर कर्व क्या होता है? जो ऊपर है, सिंपल। तो दिख रहा है ऊपर है, तो इट इज अ हायर इंडिफरेंस कर्व, इट विल गिव मोर सेटिस्फैक्शन। बट ये तो कॉन्ट्रडिक्टिंग हो रहा है फिर, इसीलिए तो इंडिफरेंस कर्व्स कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। वो भी यही कहना चाहते हैं कि टू इंडिफरेंस कर्व्स कैन नेवर intersect each other, because if they do, they will give contradicting results. कहाँ गया? ध्यान से देखेंगे। Two indifference curves can never intersect each other, as two indifference curves cannot represent the same level of satisfaction. Two indifference curves can never represent the same level of satisfaction. They cannot intersect each other. It means only one indifference curve will pass through a given point on an indifference map. Same point को दो curves कभी pass नहीं करेंगे, तो कर गए तो वो intersect कर जाएंगे ना। तो फिर क्या होगा? अब जैसे इसमें है,
ए ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं या बी? ए ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं या सी? बी ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं या सी? नहीं नहीं, इस मैं कह रहा हूं अगर अगर ये है इतना है तो बी ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं या सी? तो बट इज इट पॉसिबल कि बी सी ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे? इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज सी इज इक्वल टू ए एंड ए इज इक्वल टू बी। इस वजह से कुछ कहना चाहते हो? ध्यान से देखेंगे। इन फिगर satisfaction from point A and B will be the same. Similarly, A and C will be the same. It means point B and C should also give the same level of satisfaction. They should. However, this is not possible. B and C lie on two different indifference curves. Higher lower तो छोड़ो, हमें नहीं पता कौन सा ज्यादा देगा कौन सा कम देगा, बट सेम तो नहीं देंगे, तो कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया। This is not possible as B and C lie on two different indifference curves, IC and P represent different level of satisfaction. Therefore, two indifference curves can never intersect each other. Okay. एक और चीज, indifference curves can neither touch x-axis nor y-axis. वो कभी किसी एक्सिस को टच ना, x-axis को टच कर रहे हैं तो मतलब क्या हो गया, वन कमोडिटी हो गया ना फिर तो। इट इज अज्यूम कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप दोनों कमोडिटीज कंज्यूम कर रहे हो। अगर आप किसी एक एक्सिस को टच करोगे तो उसका लेवल 0 हो गया कंजम्पशन का, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, कोई डाउट? indifference curve, if indifference curve touches y axis, it means that the consumption of commodity on x axis is 0, but indifference curve assumption है कि we are consuming two goods. इंडिफरेंस कर्व ना तो कभी एक्स एक्सिस को टच करेगा ना वाई एक्सिस। प्रॉपर्टीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उन पे अलग से क्वेश्चन आ सकता है।